Hi. How's it going? Good? Nice. Awesome. I want to tell you all something about myself. I've been seeing a girl for 5 years now. Thank you. Through my window. Um, it's true, I have been seeing a girl and she hates it when I call her baby. She says, Kashyap, don't call me baby. So now I call her adult, uh, which is a weird thing to call someone who's only 6 years old, right? Listen, you all should know this about me. I'm an atheist. In fact, most comedians are atheists. I don't know if you've been following the news, but the only time we pray is when it's on young women. Um, is that a bit too dark for you guys? I don't know, dude. My girlfriend brought this to my attention. I don't know if you all know this, but she said, Kashyap, did you notice that men don't make sex sounds in pornography? And I had never noticed that, to be honest. I watch my porn on mute. Uh, but I did start doing my research at her behest, and I found out that she was kind of right. There's very few videos, in fact, almost none, of men making sex sounds in pornography. But I did find one video where a man was making sex sounds, and I realized why we don't make sex sounds. It's kind of because we sound something like we just had a realization, right? Like it sounds like we just had an epiphany, right? Like this is what that guy was sounding like. He sounded like this. He's like, oh. Oh, fuck. uh, I don't know, dude. Hmm. People ask weird rhetorical questions in bed. Questions like, "Who's your daddy?" Right? Is this the most apt time to have a research background check or about the family of the other person? I don't think so, right? And if you're dating someone smart, she'll ask you a question that'll baffle you, right? My girlfriend was like, Kashyap, we've been dating for 2 years. How do you not know this yet? Right? I was like, is it Chandra Prakash? I don't know. Oh no, that's my dad. So now I like to ask more practical questions, questions that give me like some sort of, semblance of stability in life. So I'll ask her if her parents are rich. I'll be like, who's your daddy? What's his bank account number? Where does he leave his checkbook? Give me all the deets. I don't know, dude. I travel a lot as a comedian. I get to travel to interesting places. I was in Berlin a couple of years back, and I want to try some Holocaust jokes in Berlin. A comedian over there said, Kashyap, that would be inappropriate. So I was like, oh, Schwitz. How insensitive is that joke on a scale of 1 to 6 million? So, if you all don't know about the Holocaust yet, it's happening in our country soon. Coming to India, 2022. I don't know, dude. I'm a bit of a stoner. It's true. The thing is, listen, I'm clinically depressed, all right? My therapist lets me do drugs, right? Like, actually, that's not my therapist, it's my dealer, but we've all got hobbies. The first drug my dealer prescribed to me was magic mushrooms. Have you guys tried magic mushroom? Anyone over here? I was in another show where I asked the crowd if they tried magic mushrooms, and a guy at the back just went, and I'm like, dude, that's verified. You don't need to say anything else. Another lady in the front row, this elderly woman, she goes, ah. I'm like, ma'am, where do you get your magic mushrooms from? So she says, food bazaar. Right? That's not where I went. I went to Kodaikanal. I popped some magic mushrooms, and I went to my favorite tourist spot, Suicide Point. Uh, Now the thing about Suicide Point is that every point is Suicide Point if you've got the will to die. Uh, I have a dog. Every time I ask him to roll, he says "tu kar." Uh, he's a genius. I know this for a fact because I asked my dog if he knew what onomatopoeia is, and he said "woof," uh, which is the correct answer. All right, that's my time, ladies and gentlemen. Thank you so much. Shreya Priyam. हाय अभी पता है कुछ महीने पहले आई जस्ट कॉल्ड अ क्लासमेट ऑफ माइंड इज लाइक ये लोग कैसे हो तो मुझे कहने लगे कि हाँ तुमको जब काम पड़ता है तभी कॉल करती हो लाइक ऐसा नहीं है उससे 2 घंटे बात करी लाइक उसको रोज़ कॉल करने लग गई और हम लोग मिले भी बहुत बार इट्स लाइक 3 months नाउ एंड इट्स नॉट नो लाइक इज इट द राइट टाइम टू आस्क हिम फॉर हिज क्लास नोट्स नाउ मुझे तो बस नोट्स चाहिए थे यार एंड दिस गाय लाइक ही इज रियली नाइस जब भी मेरे से मिलता है हमेशा कहता है कि मैं तुम्हें मेट्रो छोड़ दूँ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ लाइक नहीं मेरा पीछा छोड़ दो
but can't say to his face ना. मतलब I talk nicely to everybody. Like my mom has always taught me कि सबसे अच्छे से बात करो, सबसे अच्छे से behave करो, क्योंकि आपको पता नहीं चलता ना सामने वाला इंसान कब अमीर हो जाए. पापा तो नहीं हुए यार. मुझे तो गोल्ड के टाइप मत सोचना. इनफैक्ट आई बिलीव इन ट्रू लव. मुझे तो लगता है भगवान ने लाइक सबके लिए किसी ना किसी को बनाया है. लाइक फॉर मी ऑल्सो समबडी इज आउट देयर हु इज वेरी रिच एंड वन डे विल कम इज वेरी एक्सपेंसिव कार. इससे एकदम आएगा एंड he'll get on his knees with a ring in his hand and like कि श्रेया I love you and I know how you feel for me, just say those 3 damn words. और मैं उसके पास जाके कह दूंगी चल हट गांडू. I won't do that. मैं इनफैक्ट मैं भी इसे घुटनों पे आ जाऊंगी एंड टेक द रिंग एंड लाइक कि डायमंड कहाँ है. हाँ मतलब मुझे पता है कि वो मेरे लिए डायमंड रिंग लेते आएगा. मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ और फिर उसके बाद हम लोग छोटी सी सिंपल सी शादी कर लेंगे फ्रांस इटली में कहीं पे. हाँ लाइक बस इतना ही सोचा है मैंने, ज़्यादा नहीं सोचती हूँ मैं. हाँ मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचती हूँ इनफैक्ट ज़्यादा. मतलब जैसे वो मेरे घर आते हैं तो I'm always like कि हे टेक्स्ट मी रीच होम. लाइक घर पहुँच के टेक्स्ट करना. बिकॉज वी डू दैट बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर ना कि वो हमारे घर वापस नहीं आ रहे हैं. मुझे पसंद नहीं यार. घर आके बोलते वाईफाई पासवर्ड दे दो, कॉफ़ी पिला दो. एंड आई डोंट नो इफ यू गाइज नो दिस और नॉट, बट कॉफ़ी में ऑल आउट मिला के पिलाओ ना तो कोई नहीं मरता है. आई हैव डन माई रिसर्च. मतलब ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं. मैंने जब मैंने घर लिया था ना तो मेरा ब्रोकर मेरे से कह रहा है कि यहाँ पे बिजली हमेशा रहती है, यहाँ पे पानी हमेशा रहता है. एंड ही डिड नॉट मेंशन कि सड़क पे रहता है. मुझे दिख रहा है पानी है यहाँ पे. पीछे से हंस रहा है, हाँ चूतिया बनाते, दिख रहा है यार. मैंने जानबूझ के वहाँ पे घर लिया. मतलब जो मेरा अपार्टमेंट है ना उसमें लिफ्ट भी नहीं. मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ. मतलब ऐसा नहीं कि पैसे की कमी, पैसे तो मांग लेती हूँ मैं लोगों से. मैं वो रहती हूँ क्योंकि वहाँ पे आना मुश्किल है. मुझे लगता है कि मैक्सिमम मेरे दोस्त 3rd फ्लोर पे आएंगे, बोलेंगे बहुत ऊपर वापस चलते हैं, पर तब भी मेरे घर आ जाते हैं. और घर आके कहते हैं आना तो बड़ा मुश्किल है. आना मुश्किल है, जाना थोड़ी ना, कूद जाओ बैल्कनी से. मुझे समझ ही में नहीं आता यार. मतलब मेरे स्टॉकर्स भी बहुत सारे फॉर सम रीजन. मतलब मैं तो महादेव अपार्टमेंट रहती हूँ, किस नंबर फ्लैट में, 4th फ्लोर सीढ़ी के बगल में. हाँ ऐसे ही माई के शो से कोई उठ के आ जाता है और कहते हैं हे नाइस सेट, वहीं पे हंस देते फिर. मतलब मुझे पता चल जाता है यार. मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सब. मतलब लोग चिपकू होते हैं, मुझे तो लग गया है. वैसे तुम लोग में भी ऐसे बहुत लोग नहीं हंसे थे. अंडे ब्रेड लेते आना बस. ऐसे लोग मतलब चिपकू होते हैं. जैसे मेरा वही क्लासमेट, मैंने मतलब इरिटेट हो गई, एक दिन झूठ बोल दिया उसको कि लिसन आई हैव अ बॉयफ्रेंड एंड ही इज लाइक कि मुझे तो तुम्हारा फ्रेंड बनना है. तो मैंने गुस्से में सुना दिया उसको कि मुझे पता है तुम जैसे लड़कों को फ्रेंड क्यों बनना होता है, कि तुम वेट करते हो कि लड़की का उसके बॉयफ्रेंड के साथ कब ब्रेकअप हो जाए. जब ब्रेकअप हो जाए ना तुम इसका कंधा बन जाओ, कंधा में सेक्स कर लूँ, सेक्स से छोड़ दूँ. एंड देन ही इज लाइक नहीं तो मुझे तो बस नोट्स चाहिए थे. एंड आई वाज लाइक ओह, तो इसीलिए फ्रेंडशिप करनी थी. ही इज लाइक नहीं, वो तो तुम कभी भी फेमस हो सकती हो ना. या मे बी, नहीं तो शादी तो अमीर लड़के से हो ही जाएगी. Okay, guys, last. We need your energy for the last time now. Please welcome on stage Adil Rahman. Hello, hi. All right, guys. My name is Adil, and I'm a Muslim. Yes. So, Muslim in the house. Show me an RC paper. कोई है यहाँ पे मुस्लिम भाई नीचे? बट यहाँ पे सिर्फ क्या 2 मुसलमान? What the fuck? I'm in Gujarat right now. I tell you guys about a word, this mullah word सुना आप लोगों ने, right? See, mullah is a very respectful word in the Muslim society and all the Arab countries. To become a mullah, you have to actually study so much. You have to do courses like Vastaniya, फिर Farkaniya, फिर Maulvi. इतनी पढ़ाई करने पर you have to keep beard also. तब जाकर someone can call you mullah. You get that designation of mullah, right? But India में अभी mullah बनना is fucking easy. Just have to do one thing. Just go on Facebook and write something against Modi. आपको तुरंत मैसेज आएगा मुल्ला मादरचोद. Fucking calling me mullah, dude.
और ये वर्ड सुन के my sister got excited. She was like, Adil, I want to make my son a good mullah. What should I do? I was like, दिमाग का इलाज. But मुझे उसकी बात माननी थी, right? Because she is my sister and wife. मैम आपको जोक समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या बहुत टफ हो रहा है? मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा रहा हूँ. Sorry, what's your name, ma'am? Shivangi, thanks for coming. So देखो, sister and wife, right? So देखो, basically इस्लाम में क्या होता है ना, जबकि बच्चा पैदा होता है तो हम लोग से कान में अजान देते हैं कि बच्चा अच्छा इस्लामिक बने, right? बट यहाँ पे केस डिफरेंट था. We wanted to make him a good mullah. तो अभी हम कान में बोलते थे कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है. तो उस बच्चे से मोदी की इतनी ज्यादा बिचिंग की, उस बच्चे के दिमाग में जाके बैठ गया कि मोदी बुरा आदमी है. ये बात उसमें दिमाग में जाके बिल्कुल घुस गई. So now he has grown up. He's a big man now. His name is Kunal Kamra. You know Kunal Kamra, man? He's a great poet. But अभी दुनिया में बहुत जगह हेट क्राइम हो रहा है. मुसलमान लोग पिट रहे हैं, राइट? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, गुड़गांव में. यार गुड़गांव में तो सब पिट रहे हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान. बट व्हाट आई पर्सनली थिंक, आप मुसलमान होने के बाद भी पिट रहे हो, वो भी गोरों से, तो आपको 4 चप्पल निकाल कर मारना चाहिए. लेकिन अगर कोई गोरा आपको मानेगा, जो शॉट एक बार अल्लाहु अकबर, गोरे की गांड फट जाएगी, खुद मुसलमान बन जाएगा. मेरा एक बार गोरे से पंगा तो मैंने चिल्ला दिया, उसको जो गाना गाने लग गया, कुन फाया कुन. उसने अपना फोन फेंक दिया. उसके फोन में बस 2 ऐप. पहला Zomato. Guys love Zomato? I fucking love Zomato because the food is hygienic and tested literally. शिवांगी पता ना आपको कि Zomato का डिलीवरी बॉय ने खाना खाकर पहुंचा दिया था. तो फिर हंसी क्यों नहीं? बट ये कोई कैसा कर सकता है यार, कोई किसी का खाना खाकर सीरियसली, इतनी बड़ी कंपनी. डूड मुझे लगता है ना, जो एप्पल कंपनी का लोगो है ना, उन्होंने Zomato से ही बनवाया होगा. और अभी उसके डिलीवरी बॉय के मजा लेते हैं यार, बोलते हैं सर खाने में नमक कम है. हमने खरामजादे, मैंने रसगुल्ला ऑर्डर किया था. दूसरा आप ट्रू कॉलर, राइट? सो आई टेल यू हाउ इट वर्क्स. इधर यू हैव टू मेक अ प्रोफाइल ऑन ट्रू कॉलर, अदरवाइज इट विल सिंक्रोनाइज योर नेम फ्रॉम समवन एल्स फोन. और उस बंदे ने आपका नाम जिस नाम से सेव किया है वो नाम शो करता है, राइट? तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस देता हूँ, एज सून यू गेट अ न्यू फोन नंबर, मेक अ प्रोफाइल ऑन ट्रू कॉलर. आई रिपीट, मेक अ फकिंग प्रोफाइल. कि आपको नहीं पता है लोगों ने आपका नाम किस नाम से सेव किया है, राइट? सो रिसेंटली अ गर्ल वाज कॉलिंग, उसका नाम शो कर रहा था शुभांगी टिंडर. तो मेरे दोस्त का नाम सेव था चमन चुतिया चेतन. अरे वो सब हटाए, मेरा खुद का नाम सेव था मुल्ला मादर चोद. और दैट मस्ट बी हैज बीन अमेजिंग.